Okay, so let us start with vibration of string. तो अगर आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में मतलब इन द लास्ट सेशन यस्टरडे वी इंट्रोड्यूस्ड वाइब्रेशंस ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. तो हम उसको रिविजिट करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विथ मोर थ्योरी ऑफ इट. सो वी स्टार्टेड ऑफ विथ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग. हमारे पास एक स्ट्रिंग है. इफ यू रिमेंबर वी हैव अ स्ट्रिंग which is under tension and it is clamped at the two ends. तो एक स्ट्रिंग हमने लिया और हमने उसमें टेंशन प्रोड्यूस किया और देन हमने उसको क्लैंपिंग कर दिया, मतलब हमने उसको टाई कर दिया एट टू एंड्स. जब आप इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करोगे, when you will set it into vibration, then I mean इसको प्लग किया और छोड़ दिया. If you plug it at some point, then there will be a transverse wave set up in this medium. और हमने कल देखा था ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसका वेलोसिटी डिपेंड करता है टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी. तो वी हैव सीन दिस इन द लास्ट सेशन दैट वेलोसिटी इन दिस केस इज अंडर रूट ऑफ t by m, राइट. तो बेसिक पता होना चाहिए. तो सबसे पहले यू नीड टू know this that you have a string which is under tension and is clamped at the two rigid supports. When it is plugged at some point, yeah, at different points, then there will be a transverse wave which will be set up in the medium whose velocity is given by root of t by m. So let us consider a string. Consider a string under tension T and is clamped at two rigid supports. When the string is plugged at different points, what you will have is at different points a transverse wave is set up. इसमें एक transverse wave, क्योंकि you see if the wave is going from left to right, vibrations are perpendicular to the direction of propagation. इसके लिए you say that a transverse wave is set up in the medium. A transverse wave is set up in the medium. इसका जो वेलोसिटी होगा, velocity of the wave is given by the velocity of the wave is given by v equal to under root of tension by m. Where and मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जहां पे जो पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया वहीं पे उसको बता दूं. Where t is the tension in the string and m is linear mass density of the string. Linear mass density. Good. अब now if you remember, हमने ऑलरेडी हार्मोनिक्स देखा है. हमको ऑलरेडी पता है कि जब आप प्लग करते हो तो देयर आर मेनी फ्रीक्वेंसीज, मतलब फंडामेंटल के साथ साथ हायर फ्रीक्वेंसीज भी होते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन which frequency we are talking about, you have different frequencies here, different modes of vibration. तो हमने कल ये भी इंट्रोड्यूस किया था कि जब भी आपने स्ट्रिंग को प्लग किया तो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. हो सकता है आपके पास एक ही लूप हो सकता है दो लूप हो सकता है तीन लूप हो, चार लूप हो, पांच लूप हो. तो डिपेंडिंग ऑन दैट, सबसे बेसिक वन लूप. इसके लिए क्या किया आपने, सेंटर में प्लग किया और छोड़ दिया, तो यू गेट ओनली वन लूप. सो व्हेन यू हैव ओनली वन लूप, द फ्रीक्वेंसी हियर इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो नंबर वन, सबसे पहला फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है? फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में अभी आप जो देख रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है. यू ऑलरेडी नो दिस, तो यू ऑलरेडी हैव दिस डायग्राम और आपको सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है. तो हाउ डू यू गेट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन? यू हैव टू प्लग at the center. So when the string is plugged at the center, as shown in figure, you have two nodes and
one antinode. That means you have one loop, right? This mode of vibration is known as fundamental mode of vibration. Then अब सिर्फ इतना नहीं, there's a lot to say. एक एक करके हम देखते हैं what are the different parameters involved. So by the way, you already know दो nodes है और दोनों nodes के बीच में एक एंटी नोड है, और आपको ऑलरेडी पता है नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2, but node to node is also length of the wire, length of the string. So in this case length is lambda by 2. Okay, so when the string is plugged at the center, we have one loop. We have one loop, or one loop matlab that is two nodes and one antinode. One antinode as shown in figure. Okay, let us say, let n be the frequency and lambda be the wavelength of the wave in this case. Let n and lambda be the frequency and wavelength. Be the frequency and wavelength of the wave. अब ये जो केस है इसको आप बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. सो यू कैन से दिस इज नोन एज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. तो जब एक ही लूप होगा तो देन दैट इज नथिंग बट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. ओके, n is frequency, lambda is wavelength, and then you can say we know that what is velocity. What is velocity? N into lambda, frequency into wavelength is the velocity of the wave. Okay, तो आपको यहां से मिल जाएगा frequency will be v by lambda. So 1 by lambda, v is root of t by m, right? But as you know, in this case you have only one loop, node to node. Length of the wire is node to node, and that is nothing but lambda by 2. मैंने ऑलरेडी बता दिया है node to node is length, but length is lambda by 2 because it is node to node distance, right? So therefore you can say, but in this case you have length of the wire as lambda by 2, which is giving you lambda equal to 12. Okay, therefore n equal to lambda की जगह पे डालोगे 2l root of t by m. This is the frequency of fundamental mode of vibration, which is also called as first harmonic, not overtone. Overtone जो होता है वो higher frequencies होते हैं, greater frequencies than the first one. पहला छोड़ के those are overtones. Harmonic is including the first one. Okay, so this is the frequency. This is the frequency of क्या बोल सकते हो, this is the frequency of first harmonic, or this is fundamental frequency. This is the fundamental frequency of vibration, fundamental frequency or frequency of first harmonic, or frequency of first harmonic. So this is all you need to know. देखो क्या है, याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एंड आई कीप ऑन टेलिंग कि कोर मेमोरी पे ज्यादा जोर मत डालो, कीप इट सिंपल. डायग्राम में बता दो क्या हो रहा है, वन लूप. देन यू हैव टू से कि आपने कहीं तो प्लग किया ऐसा मिला. जब सेकेंड मोड की बात करोगे तो डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर बोलोगे let the string is plugged at some point in which you get two loops as shown in figure. यहाँ पे एक था, वहां पे दो है. उसके बाद क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व है वो बता दो. क्या क्या होगा उस केस में, सेकंड केस में 3 नोड्स आ जाएंगे और 2 एंटी नोड्स, क्योंकि फंडामेंटल में ही एक लूप है, 2 नोड्स और एक एंटी नोड. तो इसका नेक्स्ट मोड जो होगा उसमें
दो लूप मतलब 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, तो फिर बोल देना लेट n1 लैम्डा 1 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, एंड देन अगेन डू द सेम थिंग। तो अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में यू ऑलवेज स्टार्ट विथ showing modes of vibration, मतलब always show number of loops, तो you have loops, और यहाँ पे दो नोड्स ये बनेंगे दो रिजिड सपोर्ट्स पे, और एक नोड आएगा राइट एट द सेंटर। तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में you will get something like this, okay, more or less like this. Then explain this. If the string is plugged at some point, not at the center now, and you don't know where, at some point, such that two loops are obtained. Two loops मतलब 3 nodes and 2 anti nodes are obtained as shown in figure. Okay, then अभी यहाँ पे क्या होगा? What else you have to say here now? Distance between node to node आपको पता है, this is lambda by 2, this is lambda by 2, the total distance is lambda, वो ठीक है, but of course let n1 and lambda 1 be the frequency and wavelength of this mode respectively, wavelength of this mode of vibration. Therefore, we know that what is velocity? We know that velocity is given by n1 lambda 1. यहाँ पे v1 मत लिखना, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जब तक मीडियम चेंज नहीं होता है तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। I gave you example of sound wave also. If I am speaking or if you are speaking, या फिर किसी ने बाहर हॉर्न बजा दिया and all these waves are traveling through air, तो जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ अलग अलग पॉइंट पे प्लग किया है, वी आर जस्ट प्लगिंग इट एट डिफरेंट पॉइंट। मीडियम सेम था, सेम वेलोसिटी थी, सेम टेंशन था, so that is why when the medium is same, in that case velocity will remain the same. तो अगर वेवलेंथ चेंज हुआ, लॉजिकल है, v equal to n lambda, वेवलेंथ तो चेंज हो ही रहा है, यू सी डिस्टेंस चेंज हो गया। यहाँ पे नोड पहले क्या था, 2 ही नोड्स थे, तो इस केस में एज यू कैन सी वेवलेंथ इज समथिंग डिफरेंट, और यहाँ पे आपके पास 3 नोड्स हैं, सेम लेंथ में 3 नोड्स है, तो वेवलेंथ चेंज हुआ है। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो फ्रीक्वेंसी को चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो फ्रॉम हियर कांस्टेंट इक्वल टू n लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर लैम्बडा कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। गुड, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन बट frequency has to change, velocity will remain same, so you can say from here therefore frequency n1 equal to v by lambda 1 by lambda 1, what is v, root of t by m lambda 1। now you can say इस डायग्राम से आप बता सकते हो this is length lambda by 2 plus lambda by 2 मतलब lambda, तो l equal to lambda 1 here, क्योंकि ये डिस्टेंस था lambda 1 by 2 और ये डिस्टेंस था lambda 1 by 2। ओके, therefore n1 equal to 1 upon lambda 1 is l root of t by m। बता दो since l equal to lambda 1, so यहाँ पे आप लिख सकते हो multiply divide by 2, 2 से multiply divide कर दिया तो आपको मिल गया 1 upon 12 root of t by m, but what was 1 upon 12 root of t by m? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आप हमेशा हायर फ्रीक्वेंसीज को लिखते हो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो अवेलेबल है वो है 2n। ये हो गया आपका सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन।
अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, यू विल हैव 3 लूप्स। और रिमेंबर, कम से कम मिनिमम 3 फ्रीक्वेंसीज बतानी पड़ेगी आपको। वाई? बिकॉज यू विल रियलाइज वेरी सून कि 3 क्यू, पहला आया n, दूसरा आया 2n, अगर तीसरा 3n आ गया तो आप बोल सकते हो ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अगर थर्ड आपने फाइंड ही नहीं किया तो हाउ डू यू नो 3n है? हो सकता है 4n हो सकता है 5n हो। तो पहले 3 फ्रीक्वेंसीज आर इंपॉर्टेंट। इफ यू नो फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज, यू कैन टेल ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड आर प्रेजेंट, तो बता सकते हो। तो फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज आर रिक्वायर्ड। तो अब इस केस में हाउ मेनी लूप्स? 3 लूप्स। ओके, 3 लूप आएंगे। 3 लूप मतलब कितने नोड्स होते हैं? 4। रिमेंबर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक लूप मतलब 2 नोड्स और एक एंटी नोड। 2 लूप्स मतलब 2 एंटी नोड्स, 3 नोड्स। 3 लूप मतलब 3 एंटी नोड्स एंड 4 नोड्स। तो यहाँ पे 4 नोड्स आएंगे, यू टू शो 4 नोड्स। ये हो गए 2, then 1 over here and 1 over here. So you will have something like this. ऐसा आपको मिलेगा इस केस में। Okay, so this is again, बाकी तो सब story same. If the string is plugged at some point such that 3 loops are obtained, 3 loops मतलब 4 nodes and 3 anti nodes as shown in figure. तो ये story तो same है, there's nothing different here, it is all same. Okay, so that is why I keep on saying कि physics is actually very simple, क्योंकि यहाँ पे आपको वही लिखते जाना है। We have to keep saying the same thing. If the string is plugged at some point like that, 2 की जगह पे 3 loops, okay, और यहाँ पे 2 की जगह पे 3 anti nodes और 4 nodes are obtained. Okay, 4 nodes are obtained, ऐसा आएगा as shown in figure. So this is what you have to write. बाकी आगे भी सेम। फिर क्या किया था? n1 λ1 was the frequency, यहाँ पे n2 λ2 will be the frequency and wavelength. Let n2 and λ2 be the frequency and wavelength in this case, wavelength in this mode of vibration, in this mode of vibration. फिर वापस से you will say, we know that, what do you know is velocity is n2 λ2. Therefore you will have n2 is equal to v by λ2. वापस v is root of tension by mass per unit length. But in this case, as you can see here, ये जो length है, in this case length λ2 by 2 plus λ2 by 2 plus λ2 by 2, तो कितना? 3 लैम्डा। तो length in this case is 3 λ2 by 2। तो यहां से आपको मिल जाएगा λ2 is equal to 2l by 3। Good. तो but as you can see, L is 3 λ2 by 2. Therefore, λ2 is 2l by 3. Therefore, frequency of this mode of vibration n2 is equal to क्या था? n2 equal to 1 by λ2 था, तो 1 by λ2 मतलब 2l by 3, और यहाँ पे root of t by m. Okay, तो here therefore you will get, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 1/2l root of t by m, but 1/2l root of t by m is fundamental frequency. तो यहाँ पे आपको मिल गया सेकेंड ओवरटोन। क्यों सेकेंड ओवरटोन? पहला फ्रीक्वेंसी क्या था? n। पहले फ्रीक्वेंसी को कभी भी ओवरटोन नहीं बोलते। ओवरटोन बाय डेफिनेशन है नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन फंडामेंटल, उसको ही आप बोलते हो ओवरटोन्स। तो n था फंडामेंटल, 2n फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक इन दिस केस, उसके बाद 3n सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक इन दिस केस। ओके,
So this is what you have. So you see, in this case, all the harmonics are present. So जब आपके पास एक stretched string होगा, उसमें सारे के सारे harmonics present होंगे. All the harmonics are present in case of stretched string. Good. Then जो कुछ आपने लिखा है, यहाँ से बहुत सारे conclusions are possible. You can conclude a lot of things and you can make general formulas as well. तो general formulas भी आपको मिल जाएंगे. So let us list down one by one what general formula you can get. General formula. एक अभी मैंने बताया और आपने भी बताया, N1 मतलब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसका फ्रीक्वेंसी कितना था? अरे 2 इंटू फंडामेंटल. इसको N1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन है, राइट. उसके बाद N2 था 3N, N3 होगा 4N. अगर NP मतलब पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यहाँ 1 तो यहाँ 2, मतलब 1 + 1. यहाँ 2 तो यहाँ 3, मतलब 2 + 1. यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब 3 + 1. यहाँ पे P तो यहाँ पे P + 1N. तो पहला जनरल फॉर्मूला आपने बना लिया. फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन is P + 1 into fundamental frequency N, right? So first formula, in case of stretched string, frequency of pith overtone, remember this word, this is overtone, is Np equal to P + 1 into N. P + 1 into N, where N of course is 1/12 root of T by M. तो ये आ गया आपके पास पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. पीथ ओवरटोन, हार्मोनिक नहीं, पीथ ओवरटोन. ओके. और एक इंपॉर्टेंट चीज वी मिस्ड आउट, बेटर टू से, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल. फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल कितने लूप थे? 1. सेकेंड हार्मोनिक कितने लूप थे? 2 लूप थे. थर्ड हार्मोनिक कितने लूप थे? 3. फोर्थ हार्मोनिक में कितने होंगे? 4. फिफ्थ हार्मोनिक में कितने होंगे? 5. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लूप्स आर देयर? तो सेवेंथ हार्मोनिक मतलब 7 लूप्स. ऐसा भी आता है कि सेवेंथ हार्मोनिक में कितने नोट्स? 8 नोट्स. कभी कभी ऐसा भी आता है सेवेंथ ओवरटोन में कितने नोट्स? सेवेंथ ओवरटोन इज 8th हार्मोनिक. सेवेंथ ओवरटोन इज 8th हार्मोनिक. 8th हार्मोनिक मतलब 8 लूप्स. 8 लूप्स मतलब 9 नोट्स, राइट. दिखने में बहुत इजी लगता है, बट यू कैन फेच आउट अ लॉट ऑफ फिजिक्स फ्रॉम हियर. अब देन सेकेंड जनरल फॉर्मूला जो मैंने अभी बता दिया आपको, मैंने अभी बताया, पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी होगा P + 1, मतलब pth overtone is nothing but P plus first harmonic. So here you can say P + 1, frequency of pth overtone, frequency of pth overtone is frequency of P + 1 हार्मोनिक. वही है, थिंग इज सेम. सिर्फ यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी पीथ ओवरटोन का होगा वो P + 1 हार्मोनिक का होगा. अभी देखो आपने बताया N, फिर 2N, फिर 3N, फिर 4N, फिर 5N, और आपने बोला कि ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है, ये फोर्थ ओवरटोन है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फोर्थ हार्मोनिक है. फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी मतलब
सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक। तो pth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ p plus 1 हार्मोनिक। दिस इज व्हाट यू आर राइटिंग डाउन हियर, राइट? क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि आपके पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग का थर्ड हार्मोनिक, इसका फ्रीक्वेंसी सेकेंड स्ट्रिंग के फिफ्थ हार्मोनिक के साथ मैच होती है। They can ask you, you have two stretch strings. Third overtone of first string is equal to fifth harmonic of second, right? Third overtone मतलब कितना हार्मोनिक होगा? फोर्थ। तो पहले का फोर्थ हार्मोनिक दूसरे के फिफ्थ हार्मोनिक के साथ मैच होता है। दिस इज व्हाट दे कैन आस्क यू। तो ध्यान देना, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। So then, what are your conclusions, by the way? What conclusions can you make? ये तो जनरल फॉर्मूला बना लिया हमने। So you can also conclude, you can make some conclusions here. Number one, conclusions में number one तो यही लिख सकते हो, pth overtone is p plus first harmonic। यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन बोला है मैंने, क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इसके लिए। यहाँ पर कंक्लूजन है तो फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ मत बोलो, बोलो पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू p plus 1 harmonic। Number two, what else you can say? What are the frequencies present in stretch string? N, 2n, 3n, 4n. So in a stretched string, the frequencies present are, in a stretched string, the frequencies present are n, 2n, 3n, 4n and so on. Next conclusions. यही second is nothing but third conclusion. Overtones की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। All the harmonics are present, है ना? n फिर 2n फिर 3n मतलब first harmonic है, second है, third है, fourth है, fifth है, all the harmonics are present. Hence all the harmonics are present in a stretched string, are present in a stretched string। तो बहुत सिंपल सा केस था, एक्सट्रीमली सिंपल। तो यू जस्ट हैव टू से पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, एक लूप, दो नोड, एक एंटी नोड, n is frequency and lambda is wavelength, v equal to n lambda, n equal to v by lambda, v is root of t by m, lambda is equal to 2l, so 1 upon 2l root of t by m. This is the lowest frequency that you can have, that is nothing but fundamental frequency or first harmonic। इतना सब लिखना है। Then second mode of vibration में आप बोलोगे दो लूप, तीन एंटी नोड, तीन नोड, दो एंटी नोड, राइट? लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा 1, क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा 1/2 और लैम्बडा 1/2 दो टाइम्स लैम्बडा 1/2 मतलब टोटल लैम्बडा 1, राइट? अगेन यू विल से v इक्वल टू n1 लैम्बडा 1, n1 is v by lambda 1, v is root of t by m, lambda 1 is l, तो 1 by l root of t by m multiply divide by 2, ये आ गया आपका 2 times of fundamental। थर्ड नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, l is 3 lambda 2/2, तो lambda 2 is 2l/3, वापस से वही v equal to n2 lambda 2, n2 is v by lambda 2, v is root of t by m, lambda 2 की जगह पे लिखो 2l/3, तो 3 into n, तो second overtone is third harmonic। Then you can write down general formula. First overtone was second harmonic, second overtone was third harmonic, third overtone was fourth harmonic, fourth overtone will be fifth harmonic, pth overtone will be p plus 1, hence frequency of pth overtone will be p plus 1 into fundamental, and you can say frequency of pth overtone is frequency of p plus 1 harmonic। All
all the harmonics are present in a stretched string. Done. This is all you need to know. अब do you remember हमने ऑसिलेशन चैप्टर में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव किया था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। इस फॉर्मूला से हमने लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम डिफाइन किए थे, 3 लॉ। पहला था लॉ ऑफ लेंथ, जिसमें आप बोलते हो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इट्स लेंथ। दूसरा था लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें आप बोलते हो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरा था लॉ ऑफ मास, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। उसके बाद था लॉ ऑफ व्हाट, हाँ पक्का नाम भूलने वाले हो, पता था, समथिंग रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, राइट, something related to amplitude. Time period of a simple pendulum is independent of amplitude, right? तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड से 4 लॉज आपने बनाए थे। What is time period? 1 upon frequency. तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन डिराइव किया है, और हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन से हम लॉज डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट लॉज ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो यू कैन हैव 3 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, 3 or 4, let's see how many laws of vibrating string. There are 3 laws in total, laws of vibrating string. सबसे पहला आएगा लॉ ऑफ लेंथ। तो आप you need to know कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था। फंडामेंटल 1 upon 2l रूट ऑफ t by m। तो आप बोलोगे लॉ ऑफ लेंथ में द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव था, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ provided tension and mass per unit length is constant. दूसरा आएगा लॉ ऑफ टेंशन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन प्रोवाइडेड लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर मास डेंसिटी आर कांस्टेंट्स। तीसरा आएगा लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, द fundamental frequency of transverse wave या transverse vibration of a stretched string is inversely proportional to square root of linear mass density provided tension and length are constants. हाँ, तो what is so difficult? जो दिखता है वो लिखना है, that's it. फॉर्मूला पता होना चाहिए। So you can say the fundamental mode, the fundamental frequency of और ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स वाइब्रेशन भी बोल सकते हो, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन भी बोलते हैं, वेव भी बोलते हैं, डजंट मैटर। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग is inversely proportional किसको, to its length provided tension and linear mass density are constant. Tension and linear mass density are constants. Therefore, ये आपका गैस लॉ जैसे हो गया, याद है गैस लॉ, याद है, P is inversely proportional to V if T is constant, V is proportional to T if P is constant, P is proportional to T if V is constant. तो यहाँ पे भी वैसा ही है, fundamental frequency is proportional to 1 by length, T and M are constants. Simple.
Therefore, n equal to some constant upon length. Therefore, n into L is some constant. Therefore, n1 L1 equal to n2 L2 equal to n3 L3, so on so forth. जब आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, दो पैरामीटर्स का, फिजिकल पैरामीटर्स का, n इंटू एल कॉन्स्टेंट हो, तो आप लिख सकते हो n1 L1 इक्वल टू n2 L2 इक्वल टू n3 L3 इक्वल टू n4 L4, जितना लिखना है तब तक लिखते रहो, डजंट मैटर. ओके, सो अब ये हो गया पहला लॉ. दूसरा, लॉ ऑफ टेंशन. लॉ ऑफ टेंशन, इट स्टेट्स दैट tension is directly proportional to inversely proportional to number of days left for the exam. जितने कम दिन उतना ज्यादा टेंशन, right? Here we are not talking about that tension. Here we are talking about tension in the string, and we are relating that tension with fundamental frequency. So the fundamental frequency, बाकी सब सेम ही वर्डिंग रखना है. किसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? ऑफ अ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ऑफ अ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. ऑफ अ स्ट्रेच्ड बोलना जरूरी होता है क्योंकि दैट मींस देयर इज टेंशन. ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग is directly proportional to square root, directly proportional to square root of tension, to square root of tension in the string provided length and linear mass density are constants. Therefore, you can say n is proportional to root of t if L and M are constants. Right? Therefore, you can say n equal to some constant c into root of t. Therefore, n by root t equal to constant c, and therefore you can say n1 by root t1 equal to n2 by root t2 equal to n3 by root t3 and so on. सिंपल. अभी क्या रह गया? लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी. तो तीसरा नंबर, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी. लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी. तो ये भी मोर और लेस सेम ही है. तो यू कैन जस्ट से, मैं अभी लिखूंगा नहीं, यू हैव टू राइट डाउन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग is inversely proportional to square root of linear mass density provided length and tension are constant. So you can say here n is proportional to 1 by root m if t and l are constants. Okay, अब again same story, n equal to some constant by root m. Therefore n root m equal to a constant. Therefore n1 m root m1 equal to n2 root m2 equal to n3 root m3 and so on. Right? यहाँ पे थोड़ा सा एक एडिशनल चीज भी है, दैट इज अब अगर आप मास डेंसिटी की बात कर रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन अ व्हाइल. You should know, देख लो यहाँ पे n is inversely proportional to root of m, but you know linear mass density is mass per unit length, right? But if you know mass is, what is density? Mass upon volume. Density is mass upon volume. So mass is volume into density. Therefore small m is V rho by L, correct?
नॉर्मली हम जब स्ट्रिंग की बात करते हैं, इवन दो स्ट्रिंग इज वेरी थिन, इसलिए हमने लीनियर मास डेंसिटी लिया था। हमने बोला था कि वायर इज सो थिन कि पूरा का पूरा मास अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक ही डायमेंशन में है, एरिया में नहीं है, सिर्फ लेंथ में है। ठीक है, दैट इज ओके, बट कितना भी थिन हो, कुछ ना कुछ तो क्रॉस सेक्शन होगा ही, इट विल हैव सर्टेन क्रॉस सेक्शन, राइट? ऐसा होगा, ये लेंथ है, ये एरिया ए है, मतलब वायर इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? एरिया इनटू लेंथ। ये एरिया लोगे, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे। मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूं, मैं सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा हूं। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर? नहीं 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 नहीं, 2 पाई आर एल। सरफेस एरिया मतलब सिर्फ सरफेस का एरिया, सरकमफरेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया, सरकमफरेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 2 पाई आर एल, दैट इज सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब पूरा का पूरा, पूरा स्पेस जितना ऑक्यूपाई किया है इसने, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच या फिर एल। तो यहाँ पे ये याद रखना, दिस इज एरिया इंटू एल, वॉल्यूम इज एरिया इंटू एल। ये रो और ये एल कैंसल कैंसल, therefore m equal to area into density, but area is circle, circle का area is pi r square, where r is radius of this wire, pi r square rho, right? अब from here you can say mass is m मतलब linear mass density is proportional to r square provided density is constant। हो सकता है ना कि मैंने दो दो कॉपर के वायर लिए, एक का रेडियस कम था, एक का ज्यादा था। कॉपर कॉपर का डेंसिटी तो सेम होगा, पाई तो कांस्टेंट है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नाउ व्हाट यू नो इज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, आपने अभी भी बताया फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, but m is proportional to r square, right? Therefore you will have this as proportional to r square ka root, so this is proportional to 1 by root 1 by r। okay, so this is proportional to 1 by r, मतलब fundamental frequency of vibration of a stretched string is also proportional, inversely proportional to रेडियस ऑफ द वायर। मतलब जितना वायर थिक होगा, रेडियस ज्यादा होगा, थिक होगा, उतना ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम होगा, राइट? इज दिस क्लियर? सो n is also inversely proportional to radius, therefore you can say n equal to some constant by r, therefore nr equal to constant, therefore n1 r1 equal to n2 r2 n3 r3 and so on। तो जो लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी है, इट बेसिकली गिव्स यू टू रिलेशन। वन, इट टेल्स यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, एंड इट आल्सो गिव्स यू दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर। एक बार वापस देख लेते हैं कि हाउ डिड वी डिराइव। हमें पता था n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 बाय रूट ऑफ m, m is mass per unit length, mass is volume into density, volume is area into length, क्योंकि वायर मतलब सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब एरिया इंटू लेंथ, और ये L और ये L कैंसल, so that is A into density, but A is pi r square, pi कांस्टेंट है, अगर रो भी कांस्टेंट है तो n is proportional to r square। n was inversely proportional to square root of m, but m is proportional to r square, therefore n is inversely proportional to r, therefore nr equal to constant, nr equal to constant, मतलब n1 r1 equal to n2 r2 equal to n3 r3 and so on। तो ये आ गए 3 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम में इफ यू रिमेंबर लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसमें टाइम पीरियड का रिलेशन था, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ g,
टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहले ओवरटोन का नहीं, दूसरे का भी नहीं, तीसरे का भी नहीं, फंडामेंटल। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपने ही बताया अभी अभी, क्या बताया? यू सेड ऑल आर प्रेजेंट, मतलब जो रूल्स फंडामेंटल के लिए एप्लीकेबल है वो तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए भी है ना, क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन इटसेल्फ इज 2n, सेकंड ओवरटोन इज 3n। अगर मैं n पे कोई रूल अप्लाई कर रहा हूं तो वो 2n पे भी एप्लीकेबल है, वो 3n पे भी एप्लीकेबल है, वो 4n पे भी एप्लीकेबल है, राइट? तो हायर फ्रीक्वेंसीज के तो एप्लीकेबल है ही, अगर फंडामेंटल पे एप्लीकेबल है तो। दैट इज व्हाई लॉज डिफाइन करते वक्त you always define laws on fundamental frequency, because all the higher frequencies depend on fundamental frequency. Is this clear? Good. So we will stop here, and in the next session we will see how to get such relations with the help of experiments using sonometer.